हाँ, आएंगे। स्लॉट स्लॉट के अकॉर्डिंग उन्हें बुलाया जाएगा। उनका टाइम टेबल डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग। So basically from today onward you will study a new subject which is basic electrical engineering, right? My voice is clear to all. Yes, sir. Yes, sir. And now I have shared my screen also. So is it visible to you or not? Yes, Yes, sir. sir. So it is visible. Okay, fine. So now from this week you are going to study a new subject and the subject name is basic electrical engineering, right? This is the name of subject. Okay. So basically this is a very interesting subject and it is going to very easy to you because most of the things you have already studied in your plus 2, uh, you have already know about the KVL, KCL, Ohm's law, everything, capacitor, inductor you have studied in your plus 2 class, है ना? Yes, sir. Right? So basically from that knowledge we will start and then we will upgrade that knowledge to here in this subject particular. Okay. So far how many students have joined? 20, 22. Okay, let's wait for 2-3 minutes more so that everyone can join. Then we will start. Okay. Okay, sir. So basically, how I will take the lecture, just like your PPS or other subject. In every lecture, I will also take some quiz, at least 2 or 3 quiz in each lecture, maybe 4 quiz. That depends upon the topic, how much topic will cover. Okay. So 2-3 quiz in every lecture. Then assignment is given to you after in the last of the lecture. Okay. So for the quiz, uh, 2 minute time will be allocated. In that 2 minute, you have to submit the quiz. And for assignment, I will give around 10 minutes. You have to submit the assignment in 10 minutes only. Okay. So, what will be in the assignment? Whatever I discuss in the lecture, that only will be in the assignment. Okay. Maybe it will be a numerical question, something 1 or 2 numerical, or it may cover a theory topic. Then you have to write it. Just you have to solve it on a blank paper and just scan it and upload it. Upload your answer against the assignment. Okay. Okay, sir. Okay. So I'm going to start. So basically, I was saying that your subject name is basic electrical engineering, and the whole subject is divided into 5 units. Okay. Total 5 units are there. 5 modules are there. Okay. So in the very first unit, you will study DC network theory, right? So particularly in this unit 1, I will study DC network theory. You know what is DC, what is AC. So basically we will deal with DC in this network, in this unit, and we will solve various type of numerical with various technique. Okay, that we will discuss later point of time. And then in unit 2, we will study AC fundamental. Right.
So basically in unit 1 we are discussing DC, then in unit 2 we will switch to AC, then we will study AC, about the AC circuit, everything. Then in unit 3 we will study transformer. Okay. Unit 4 is your electrical machine. And unit 5 is installation, electrical installation. So these are the 5 units. Okay. So basically we will cover these things in this particular classes. So first of all, let's start with unit 1, that is DC network theory. So I'm going to start your unit 1, that is DC network theory. Okay. So I'm going to start this. So let's discuss one by one. What is DC? First, give me the answer. What is DC? DC stand for? Direct current. current. Direct current. Okay. So basically, two types of supply are there, which you know. One is AC and other is DC. AC stand for alternating current and DC is direct current, right? So in this particular unit, we will deal with this DC supply, DC network theory. That's why its name is. Next is network. What is network actually? Do you have any idea what is network? सर ये टाइप ऑफ चेन मतलब कनेक्टेड Yes, please give me the answer. No issue. I want just answer. Maybe it will be right or wrong. Doesn't matter. Akhil? सर टाइप ऑफ चेन मतलब जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में Type of chains. Okay. Let's keep it. And any other answer? Anyone else? Any idea about the network? So the system of nerves that are connected with each other. The system of what? Sir, nerves मतलब कुछ भी हो जैसे roads हो कुछ भी that are connected with each other. Yes, that means interconnection, है ना? Yes sir. Yes, sir. Interconnection of various things. Maybe a network, like group of people may also form a network. है ना? Have you heard Yes, that sir. business networking business? Yes, sir. So in that business particularly, just what we do, we just add new people in our network. Okay. So basically we can say interconnection, है ना? So in similar manner, we can understand this electrical network. Okay. So network क्या है? It is the general interconnection of various electrical elements. इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके कई सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को मिला के मैं एक नेटवर्क फॉर्म कर सकता हूँ. ओके. इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में फॉर्म अ नेटवर्क. ओके. ठीक है. यस सर तो अब यहीं से एक टर्म निकल गया एलिमेंट्स. इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? नेटवर्क को मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कनेक्शन जो है नेटवर्क है. ओके. तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? अभी रफ मैं जस्ट एक आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ, अभी कोई टॉपिक नहीं शुरू किया. इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स. ओके. तो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? आप किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से फेमिलियर हो तो बताइए. कंप्यूटर स्मार्टफोन से सब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ये सब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जिसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं. कंडक्टर Sir, battery. कंडक्टर्स ओके. बैटरी. हाँ, कंडक्टर्स इज आल्सो आई विल कंसीडर दैट इज. Resistors. First is battery. Very good. Next. Key. Key. चलो. Okay. Sir, That is switch, transistors, capacitors.
Okay, capacitor. Transistors. Okay, transistor also I will write. Anything else? Inductor. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are some elements in which basically transistor is an electronic device. Okay, but if I am talking about only electrical elements, so इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जो है सो आप फेमिलियर हैं तीन बेसिक एलिमेंट्स से, तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप फेमिलियर हैं। पहला है आर, दैट इज रजिस्टर, राइट। नेक्स्ट है एल, दैट इज इंडक्टर। थर्ड वन इज कैपेसिटर। इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना, आर एल सी। बताइए। यस सर। Yes, sir. है ना, वन बाय वन हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने बोला बैटरी, है ना, बैटरी भी एक एलिमेंट है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम कंबाइंड करके हम नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स को रैंडमली किसी भी फॉर्म में, मे बी सीरीज में, पैरेलल में फॉर्म करके हम नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मे बी 2 एलिमेंट्स हो, मे बी 10 एलिमेंट्स हो, वो नेटवर्क फॉर्म करेंगे, राइट। ठीक है ना। यस सर। तो बेसिकली Yes, sir. आपको आइडिया लग गया कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से डील करने वाले हैं, डीसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से हम यहाँ पे डील करेंगे यूनिट 1 में। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है यूनिट 1 के। तो ये आपका है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम पे मैं शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली देखिए, इसको यूनिट 1 का नोट्स है। इसके सिलेबस में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द सर्किट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। देन उसके बाद एलिमेंट्स के टाइप्स हैं, ये मैं फर्दर शुरू करूंगा, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, जो मैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बता रहा था अभी, जैसे आर एल सी, वोल्टेज सोर्स, एक और आएगा करंट सोर्स। तो इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है ना, तो वो कैटेगराइजेशन है एक्टिव, पैसिव, है ना। सिमिलरली लीनियर, नॉन लीनियर नेटवर्क, फिर यूनिलैटरल, बाईलैटरल एलिमेंट्स। और ये है सोर्स के बारे में भी पढ़ना हमें, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एलिमेंट्स पढ़ेंगे सारे। उसके बाद सोर्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अभी तक आपने केवल वोल्टेज सोर्स पढ़ा है ना। जैसे डीसी वोल्टेज सोर्स हो तो बैटरी से शो कर, बैटरी डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है कि नहीं। Yes, sir. और एसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल, Transformer. हाँ, ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी होता है। बट जैसे आपके घर पे जनरेटर होता है, मोस्टली सबके घर में नहीं होता, लेकिन जनरेटर तो देखा होगा ना। यस सर, एसी Yes, sir. तो एसी जनरेटर भी एसी वोल्टेज सोर्स हुआ, Yes. ठीक है। कोई भी जनरेटर हुआ वो सोर्स ऑफ वोल्टेज हुआ। अब जनरेटर डीसी है तो डीसी वोल्टेज सोर्स है, एसी है तो एसी वोल्टेज सोर्स है। सिमिलरली बैटरी भी डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे करंट सोर्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन जब हम वो टॉपिक कवर करेंगे तब देखते हैं। तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हम फिर मूव करेंगे एक टॉपिक से जिससे आप बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हैं, किरचॉफ्स लॉ, है ना। ये तो सबने पढ़ा होगा +2 में। यस सर। हाँ, तो ये किरचॉफ्स लॉ। सो बेसिकली हम किरचॉफ्स लॉ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बैकबोन है इस यूनिट का। बिकॉज किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे और दोनों लॉ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। कौन कौन से लाते हैं, कोई बताएगा क्या। किरचॉफ्स के 2 लॉ कौन कौन से थे बेटा। सर किरचॉफ करंट लॉ। सर एवरेज सम ऑफ जीरो होता है। आई एम आस्किंग जस्ट नेम, नाम बता दीजिए बाद में उस। हाँ बताइए। सर किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जंक्शन रूल था सर एक। हाँ, जब लूप रूल। चलिए, सब लोग कुल मिला के कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो भी नॉलेज है आपकी उसी के थ्रू बता रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ याद आ रहा है।
तो बेसिकली दो लॉ है ना। फर्स्ट वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। सेकंड इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शॉर्ट फॉर्म में इसे केसीएल और केवीएल भी बोलते हैं। ओके, तो जब उसका डिटेल हम पढ़ेंगे तो उसका स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ। फिर उसके बाद इसी लॉ से रिलेटेड हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, नोड एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ये पढ़ेंगे। फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। और इसमें अभी लिखा नहीं है, दो तीन टॉपिक और हैं, थियरम्स हैं, है ना। ये नहीं है आपके फर्स्ट यूनिट में, ये सिलेबस पुराना है। आप यूनिवर्सिटी के साइट से नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ थियरम्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, तो लिखा है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिमेंट्स सच एज वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनका कॉम्बिनेशन नेटवर्क फॉर्म करता है। ओके, यही मैंने भी बताया। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने दो टर्म सुना होगा। एक तो सुना होगा नेटवर्क, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस भी किया, और दूसरा होता है सर्किट। ये दोनों वर्ड्स आपने सुने हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So is there any difference between this network or and circuit, or both are same? Sir, circuit should always be closed. Sir, circuit may be open or closed, and network is closed. I guess the first answer was correct. Circuit must have contain a closed path, है ना। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट नेटवर्क फॉर्म करता है, ये आपको पता है। अब क्या होता है, ये जो नेटवर्क है ये मे भी ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है ना। ओपन वन भी हो सकता है, क्लोज वन भी हो सकता है। तो अगर उसमें क्लोज पाथ कंटेन कर रहा है तो इसे हम सर्किट बोलते हैं। ओके, सो अ नेटवर्क कंटेनिंग एट लीस्ट अ क्लोज पाथ इज नोन एज सर्किट। सो इन दैट मैनर आई कैन से एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क। जो भी सर्किट है उसमें क्लोज पाथ है तो वो नेटवर्क भी तो है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी नेटवर्क इज अ सर्किट, राइट। यस सर। ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस आपका सर्किट और नेटवर्क में यहाँ पे लिखा भी है। अ नेटवर्क में बी ओपनड और क्लोज, any closed path formed by the voltage source, current source, RLC that results in a flow of current is known as circuit। जब क्लोज पाथ होता है तो सर्किट हो जाता है। यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, ये आपका नेटवर्क है, सर्किट नहीं है। फर्स्ट डायग्राम आपका, मैं थोड़ा और ड्रैग करता हूँ, दिख रहा है, लिखा भी है नेटवर्क, क्योंकि इस यस सर। नेटवर्क में कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं तो नेटवर्क तो फॉर्म कर रहा है। वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंसेज हैं, तीन रेजिस्टेंसेज है, R1, R2, R3, तो नेटवर्क है। बट क्योंकि कोई क्लोज पाथ नहीं है तो ये सर्किट नहीं है। बट यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया गया जिसमें RLC कुछ भी लगा दिया गया और क्लोज पाथ जरूरी है, क्लोज पाथ है तो वो सर्किट है। तो बेसिकली इस सर्किट को हम इधर सर्किट बोले या नेटवर्क बोले, नो इशू। बट अगर इस नेटवर्क को हम सर्किट बोले ये गलत हो जाएगा, है ना। सो एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क बट एवरी नेटवर्क इज नॉट सर्किट। Circuit is branch of network. यस यू कैन से। ठीक है। सो अब जाके हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। हम नेटवर्क को या एलिमेंट्स को एक्चुअली कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके का एलिमेंट नेटवर्क में होगा वही नेटवर्क का टाइप हो जाएगा। ओके, तो जो ये क्लासिफिकेशन है ये तीन चार तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगराइजेशन है हमारा कि बेस्ड ऑन लीनियरिटी। ठीक है, एक हमारा लीनियर नेटवर्क हो सकता है, दूसरा नॉन लीनियर होगा। डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, पहले तो बस कैटेगराइजेशन देख लीजिए कि लीनियरिटी के अकॉर्डिंग हम उसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क। सिमिलरली बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सोर्स,
कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें सोर्स प्रेजेंट है, कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसे कैटेगराइज कर सकता हूँ एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क में, राइट। सिमिलरली देन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, यूनिडायरेक्शनल दैट इज यूनिलैटरल, बाई डायरेक्शनल दैट इज बाईलैटरल, दो तरीके से, दो टाइप के ये भी हो जाएंगे। फिर लास्ट है आपका बेस्ड ऑन सेपरेबिलिटी, उनके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, सॉरी लम्प्ड नेटवर्क है, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क दूसरा, ये टाइप है आपके। ओके Yes, sir. तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है, इससे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में भी, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि आपके जो पेपर का पैटर्न है, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं, जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, तो बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें 20 मार्क्स के 60 क्वेश्चन होते हैं, दो दो नंबर के, 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो वो यहीं से पूछता है एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारी चीज़ें खूब पूछी जाती हैं। तो एक सर्टेन क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा एग्जाम में एक्टिव पैसिव एलिमेंट के बारे में। तो एक्टिव एलिमेंट, ओके, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट पढ़ने जाना, तो सबसे पहले एक्टिव एलिमेंट्स। तो क्लियरली लिखा हुआ एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स दैट आर कैपेबल टू डिलीवरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स, दैट एलिमेंट विच आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, ओके, उसको हम एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ओके, ये एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं कोई नेटवर्क बनाता हूँ, सपोज मैंने एक नेटवर्क बनाया है रैंडमली कुछ भी, ये नेटवर्क है, तीन चार एलिमेंट्स को कनेक्ट करके मैंने एक नेटवर्क फॉर्म किया। तो बेसिकली वो एलिमेंट जो इस पूरे नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई कर रहा हो, सोर्स क्या है, सप्लाई क्या है, यही है ना, वोल्टेज सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं। यस सर। तो बेसिकली ऐसे एलिमेंट जो नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं एनर्जी, वो होते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। एक्टिव एलिमेंट्स लाइक इसका एग्जांपल है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और इसके अपोजिट पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। अब सर इसका रिसीव मतलब करने के, स्टोर की मतलब स्टोर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, स्टोर तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला रिसीव कर रहे हैं। कहाँ स्टोर लिखा है मैंने, कहाँ स्टोर बोला मैंने बेटा, किसने पूछा था। सर मैं ही पूछा था, इसे मतलब वैसे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब स्टोर करती है एनर्जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी तो हो जाएगा। मैंने तो अभी बोला एक सोर्स एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरा एनर्जी रिसीव कर रहा होगा, है ना भाई। एक ने सेंड किया तो दूसरा रिसीव करेगा ना। तो चलो ये रिसीव कर रहा है। अब ये रिसीव करने के बाद इस एनर्जी को आइदर डेसिपेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और स्टोर कर सकता है। दो तरीका है ना। सो पैसिव एलिमेंट्स और दोज एलिमेंट विच डेसिपेट एनर्जी और स्टोर एनर्जी, ओके। तो ये हमारे पैसिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपके इस नेटवर्क में पर्टिकुलर देखा आपने कि जो है ये तो एनर्जी दे रहा है, तो ये एक्टिव एलिमेंट्स है, ये सब हमारे रिसीव कर रहे हैं, ओके। तो ये पैसिव एलिमेंट्स है। और बिकॉज रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है, वो स्टोर नहीं करता है एनर्जी को। रजिस्टर क्या है बेसिकली, रजिस्टर जो होता है, वैसे तो आपको पता है रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, फ्लो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये सब चीजें है ना, ओके।
तो बेसिकली रजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव करेगा, उसे हीट के फॉर्म में डेसिपेट करेगा। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा रजिस्टर। अब जैसे कोई एग्जांपल, इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल, इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करते हो किसी अप्लायंसेस में। कोई हीटिंग अप्लायंसेस आप घर में यूज करते हैं क्या? हीटर। सर आयन। हाँ, हीटर आयरन, वेरी गुड। तो हाँ ठीक है, हीटर और आयरन। गीजर ऑल्सो। तो ये, हाँ यस, ओके, गुड। तो बेसिकली ये जो है आपका, बेसिकली क्या होता है, उसमें हाई रेजिस्टेंस का एक कॉइल लगा होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस से जब हमारा करंट फ्लो होती है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, हीट के फॉर्म में डेसिपेट करता है। ओके, ठीक है ना। सिमिलरली तो हमारे पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल क्या हुए? आर, एल और सी, ये पैसिव एलिमेंट्स हैं हमारे। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इंडक्टर कैपेसिटर क्या है? इंडक्ट रजिस्टर तो आपको पता चल गया, वो डिसिपेट करता है एनर्जी को हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है ना। ओके, पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इंडक्टर कैपेसिटर सब। अभी के लिए कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। तो एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर हमारा वायर नहीं होगा हाँ। सर एक्टिव पैसिव में। पैसिव में। वायर क्या है? वायर क्या है आपका? कनेक्टिंग वायर जो है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसे एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कीजिए। अगर हम जस्ट डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं और वायर का रेजिस्टेंस निग्लेजिबल मान लेते हैं तो उसको जस्ट हम प्योर कंडक्टर मान लेते हैं, दैट इज जीरो रेजिस्टेंस। ओके, ओके वायर जो है वो भी एक तरीके से क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ना। ओके, इस वजह से तो वायर हीट अप हो जाता है। वायर के थ्रू करंट फ्लो होती है तो वो यस सर। है ना, आई स्क्वायर आर, इतना पावर उसमें है जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। आई स्क्वायर आर टी, ये एनर्जी रिलीज करता है ये, इस वजह से वो हीट अप होता है। क्लियर? तो बेसिकली ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ये नोट प्रोवाइड करने वाला हूँ, और सेम वही चीज लिखा हुआ है कि एलिमेंट दैट आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ओके, similarly in passive elements, the elements which are capable of receiving and storing or dissipating the electrical energy is called passive elements. So either it can dissipate that energy or it can store for, ठीक है, further use. So basically example is RLC, resistance, inductance, resistor, inductor, capacitor, right? तो ये तो एलिमेंट का बात हो गया। अगर इसी में पूछा आपका एक्टिव नेटवर्क क्या है, तो लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर एक्टिव एलिमेंट मेक्स एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो नेटवर्क एक्टिव होगा। अगर नहीं प्रेजेंट हो, सारे पैसिव एलिमेंट्स ही हो, तो वो नेटवर्क पैसिव होगा। ओके, यस सर। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि कुछ एलिमेंट्स और हैं जो कि एक्टिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़े भी होंगे, +2 में ट्रांजिस्टर है ना, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज पढ़े होंगे। यस सर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली एज ए एम्पलीफायर यूज होता है। मतलब हम ट्रांजिस्टर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, 3 पिन डिवाइस है हमारा ट्रांजिस्टर।
और उससे हम बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं अपना वोल्टेज करंट को। तो एज एम्पलीफायर भी यूज होता है, एटेन्यूएटर भी यूज होता है। तो इस तरीके के डिवाइस बेसिकली जो भी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, उन्हें हम अगेन एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके। सो अगर ट्रांजिस्टर आपसे पूछे कि एक्टिव है या पैसिव है, तो इस तरीके से अगर इस डेफिनेशन को देखें कि जो सप्लाई करता है एनर्जी, तो ट्रांजिस्टर के अंदर कोई एनर्जी तो नहीं है। ट्रांजिस्टर तो जस्ट एज अ स्विच या एज एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। इनपुट देते हैं, एज एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो आउटपुट एम्पलीफाई करके देगा। ओके। लेकिन उसका इटसेल्फ कुछ एनर्जी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके थर्ड टर्मिनल के थ्रू हम इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इमीटर, कलेक्टर और बेस 3 टर्मिनल होते हैं ना। Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, तो इस वजह से हमारा ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स। ओके। सो यूनी मीन्स, मैंने पहले भी बताया था, यूनी डायरेक्शनल। यूनिलैटरल मीन्स यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन। बाई मीन्स 2, है ना, तो बाई डायरेक्शनल। ओके। अब डेफिनेशन देखिए क्या लिख रहा है। सबसे पहले बाइलेटरल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिख रहा है इफ द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट रिमेन अनचेंज ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई एक एलिमेंट है जिसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो भी एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो बिहेवियर है, वो सेम रह रहा है, अनचेंज रह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के एलिमेंट को हम बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स, है ना। दैट मीन्स डिपेंड, ऐसा नहीं है कि इसमें, देखो जैसे रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया है, रेजिस्टेंस हमारा आर एल सी तीनों एक्चुअली हमारा बाइलेटरल एलिमेंट है। क्यों है? देखिए, ये आर है आपका, इस रेजिस्टेंस में करंट आइदर इस डायरेक्शन में फ्लो करे, मैं पढ़ा रहा हूं बाइलेटरल, तो बाइलेटरल के लिए जैसे मैंने रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया, ठीक है, सपोज मैंने इसे सोर्स से कनेक्ट किया है, इस तरीके से एक डीसी सोर्स लिया, बैटरी लिया, उससे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो आपको पता है अभी करंट ऐसे फ्लो होगी, है ना, यानी इस आर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सपोज आई, ये वोल्टेज वी है। ओके। तो आपको पता है आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ओम्स लॉ, यही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ये अभी भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसी के अपोजिट में अगर इसी एलिमेंट को, आर को ही क्या किया मैंने, सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। कैसे चेंज करेंगे? सोर्स के टर्मिनल को आपस में चेंज कर दिया, है ना, जहाँ पॉजिटिव था वहां निगेटिव कर दिया, जहाँ निगेटिव था वहां पॉजिटिव कर दिया। तो अब बेसिकली हमारी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई कि नहीं होगी? Yes, sir. अगेन आई इक्वल टू वी बाई आर, सेम है ना, तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा, ना इसके बिहेवियर पे कोई फर्क पड़ा, अभी भी ये ओम्स लॉ को ही फॉलो कर रहा है। दैट इज, अगर वी और आई के बीच में मैं करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो लीनियर करेक्टरिस्टिक मिलेगी, है ना। Yes, sir. तो ये बेसिकली इस वजह से हमारा ये बाइलेटरल एलिमेंट है कि करंट की आइदर डायरेक्शन में ये सेम करेक्टरिस्टिक दे रहा है। इसका करेक्टरिस्टिक और इसका बिहेवियर करंट की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, राइट। और इसके अपोजिट अब Yes, यूनिलेटरल, sir. हाँ, अब इसके अपोजिट यूनिलेटरल समझना आसान है। जस्ट इसका अपोजिट डेफिनेशन, इफ द करेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट चेंजेस ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है चेंज करने पे डायरेक्शन पे, तो वो यूनिलेटरल हो जाएगा। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है एक्टिव पैसिव का भी, सब कुछ सारे डेफिनेशन जो भी हैं नाम में ही है। एक्टिव, जिसके पास एनर्जी हो वो एक्टिव है, जिसके पास एनर्जी नहीं है वो पैसिव है ना। सिमिलरली बाइलेटरल, यूनिलेटरल, बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं? डेफिनेशन पता है, बाइलेटरल में यूनिलेटरल का डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, यूनिलेटरल में बाइलेटरल का, आई डोंट नो व्हाई, बट
ये ऑफनली ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। तो क्लियर है, बाई लेटरल को ऐसे समझो बाई डायरेक्शनल, उसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है और उसका बिहेवियर सेम रहेगा, ऐसे ध्यान रहेगा ना। और सिमिलरली यूनिलेटरल मतलब यूनिडायरेक्शनल। तो लिखा हुआ है सच नेटवर्क इज नोन एज यूनिलेटरल। अच्छा, एग्जाम्पल है डायोड। ओके, डायोड आपने सबने +2 में पढ़ा होगा ना। Yes, sir. तो बेसिकली डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस जिसमें हम दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, पी टाइप और एन टाइप, राइट। तो डिटेल में नहीं पढ़ना है मुझे डायोड कि मैं यहाँ पे पूरा पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग बताऊं। तो एक पी टाइप मटेरियल होता है, एक एन टाइप। तो ये पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब निगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव टाइप निगेटिव टाइप। अच्छा, इस डायोड को मैं अगर ऐसे कनेक्ट करूं, चलिए मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये हमारा डायोड है, ओके, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसको मैं पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करूं और एन को निगेटिव से, तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है कि नहीं। Yes, sir. Forward bias. फॉरवर्ड बायस Yes. होता है और ये ऑन की कंडीशन होती है और ये करंट को कंडक्ट करता है, करंट फ्लो होती है ना। यानी ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अगर आइडियल डायोड है तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, ये यानी करंट को पास करेगा, है ना। जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये स्विच ऑन की कंडीशन होगी, ओके। और इसके अपोजिट अगर सेम डायोड को मैं करंट की डायरेक्शन इसमें रिवर्स करता हूँ, डेट मीन्स अगर मैं आपकी पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, निगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस होता है, Yes, sir. ओके। तो रिवर्स बायस में एक्चुअली डायोड करंट को ब्लॉक करता है, ओके। तो ये इस तरीके से करंट को ब्लॉक कर रहा है, दैट मीन्स ये करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। करंट फ्लो कब नहीं होगी, जब हमारे पास ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो होती है ना। करंट Yes, कभी भी sir. फ्लो फ्लो तभी होगी जब क्लोज पाथ मिले। जैसे आपके पास कोई वायर है, उसे आप बीच से ब्रेक कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो वायर के एक साइड से दूसरे साइड में करंट तो नहीं जाएगी ना। जैसे ये वायर है, तो हम इसमें स्विच क्यों लगाते हैं, ये स्विच है, तो ये स्विच अगर क्लोज है तो करंट यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, स्विच अगर ओपन है तो करंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगी, राइट। तो इसलिए डायोड एज अ स्विच की तरह, ये यानी स्विच ऑफ है, ये ऑफ की कंडीशन है रिवर्स बायस्ड में, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो बेसिकली Yes, आपने sir. क्लियरली देखा कि डायोड का जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है करंट पे, दैट इज कैसे हम पोलरिटी में हम सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हैं। करंट कैसे डिसाइड होगा, सप्लाई की पोलरिटी से, राइट। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि डायोड जो है हमारा, उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जा रहा है। एक टाइम पे वो स्विच ऑन की कंडीशन को शो कर रहा है और जैसे ही हम पोलरिटी चेंज की, दैट इज करंट की डायरेक्शन चेंज की, तो वो स्विच ऑफ की कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिलेटरल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आपको अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी डायोड की याद हो तो इस तरीके का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता था डायोड का, ओके। फॉरवर्ड बायस में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होती थी, राइट। इनिशियली वोल्टेज हमारा बढ़ाते थे, करंट जो है उस रेशियो में नहीं बढ़ता था, ये नी वोल्टेज होता था। इसके बाद हमारा वोल्टेज ऑलमोस्ट लीनियरली बढ़ता था जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते थे, है ना। और ये नी वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। पढ़ा है ये सब। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ये तो इसकी फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स बायस में, डेट इज जब मैंने वोल्टेज को रिवर्स कर दिया, यहाँ माइनस भी है, तो उस केस में ये बेसिकली करंट को ब्लॉक करता है। वोल्टेज कितना भी बढ़ाए करंट नहीं फ्लो होता है ना। बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो होता है जिसे हम लीकेज करंट भी बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेकडाउन हो जाता है डायोड का, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद हमारा करंट, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा करंट एब्रप्टली बढ़ता है। तो आपने देखा एक डायरेक्शन में करंट के लिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे डायरेक्शन में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। तो
इस वजह से ये हमारा ये यूनिलेटरल है। ओके, सर एब्रप्टली Yes, बढ़ता sir. है तो क्या मतलब है? दैट मीन्स डायोड ब्रेक डाउन हो गया, डायोड जो है ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, अब करंट पास करेगी एकदम तेजी से, है ना। पहले तो वो करंट को ब्लॉक कर रहा था, केवल लीकेज करंट, माइन्यूट करंट फ्लो हो रही थी। यस सर। ओके, बट एक सर्टेन लेवल होता है वोल्टेज का जिसपे वो डायोड विथ स्टैंड कर सकता है, उससे फर्दर अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो वो डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, तो वही सारी चीजें देखो इस नोट्स में भी दिखाया हुआ है। डायग्राम थोड़ा छोटा था, मैंने इसे ड्रॉ कर दिया इसलिए अलग से। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की कंडीशन है। ओके, तो आया समझ में यूनिलेटरल बाइलेटरल? यस सर। अच्छा ओके, तो एक क्विज कीजिए आप लोग, मैं क्विज सेंड कर रहा हूँ आपको, गूगल क्लास पे क्विज मिलेगा, गूगल क्लास सबने ओपन कर ही रखा होगा, तो मैं वहाँ पे आपको क्विज सेंड कर रहा हूँ। क्विज सेंड कर दिया है मैंने, तो 2 मिनट के अंदर इसे कीजिए। हो गया सर। सर डन। अभी 14 स्टूडेंट ने, 17 ने टर्न इन किया, रिमेनिंग स्टूडेंट जल्दी कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये पैटर्न होगा लेक्चर का आपका, जिसके जितने क्विज और असाइनमेंट मैं दूंगा, सब में जो प्रेजेंट रहेगा, जो अटेम्प्ट करेगा, उसी को अटेंडेंस अलॉट, अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क होगा, अदरवाइज एब्सेंट। जैसे एक लेक्चर में अगर मैं 4 क्विज दे रहा हूँ, तो जो चारों को अटेम्प्ट करता है, आंसर सही हो गलत वो अलग चीज है, अटेम्प्ट करेगा तो ही अटेंडेंस मिलेगा। और असाइनमेंट, असाइनमेंट मैंडेटरी है, असाइनमेंट सबका आना चाहिए, क्योंकि क्विज जो है टोटल एक लेक्चर में 4 मार्क्स का है, लेकिन असाइनमेंट आपका 10 मार्क्स कैरी करता है, तो असाइनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और असाइनमेंट के लिए मैं एग्जैक्टली केवल 10 मिनट अलॉट करूंगा, जब भी अलॉट करूंगा मैं बता दूंगा। और 10 मिनट के बाद लेट सबमिशन में अगर आएगा तो वो जीरो इवेल्युएट होगा, वो जीरो के लिए, उसको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आ, कुछ लोगों का अभी भी रह गया होगा, मुझे लग रहा है 2-3 लोग और हैं, जल्दी सबमिट कीजिए, टाइम अप होने वाला है। कर दिया सबने? 2 मिनट से ज्यादा हो गया है, मैं क्लोज कर।
तो बेसिकली सबका ठीक है। फंसिका शर्मा का गलत है, बाकी सबका ठीक है। चलिए अभी मैं एक क्विज और दे दे रहा हूँ, क्योंकि देखता हूँ क्या था क्विज 2 में। यूनिलेटरल, हाँ ये भी कर लीजिए, कर ही लेंगे, मैंने पढ़ा दिया है। तो क्विज 2 भी मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसे भी फटाफट सबमिट कीजिए। यहाँ से सेंड कर दिया है, आप रिफ्रेश कीजिए गूगल क्लास, आपको रिसीव हो जाएगा। रिसीव्ड? Yes, sir. यस सर। Yes, ओके sir. ओके Done, ओके sir. ओके। डन सर। ओके, Done, sir. so should I close the response? Everyone have turned in. So I'm going to close the response. Okay, अर्श कुमार कौन है? अर्श, अर्श यहाँ क्लास में है क्या? है ही नहीं क्लास में। अर्श, हेलो, आवाज आ रही है? ओके, नो इशू। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल असाइनमेंट कर रहे हैं, वो भी गलत। अर्श, आवाज आ रही है क्या? आपको अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में हमारा। फिर हमने यूनिलेटरल बायलैटरल एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, एक और कैटेगरी पढ़ते हैं, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लंप्ड नेटवर्क। एक और नेक्स्ट टाइप है इसका, जिसे हम दो तरीके में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और लंप्ड नेटवर्क। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, a network in which the circuit elements like R, L, C, etc. cannot be physically separable for the analysis purpose। ऐसे नेटवर्क जिसमें जो उस नेटवर्क के जो R, L, C जो होंगे, प्रेजेंट होंगे उस नेटवर्क में, उसको हम
फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है, उस जो एलिमेंट्स हैं जैसे ये आर एल सी जो हैं, वो द एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द लेंथ, वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन होता है, बेसिकली आपने देखा होगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन देखा है ना, जो टावर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जाती है। यस सर। हाँ, तो बेसिकली उसमें आपको कंडक्टर दिखता है जिसके थ्रू सप्लाई जा रही है। ओके तो वो हंड्रेड्स और थाउजेंड किलोमीटर की लंबी लाइन होती है। 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, मे बी 1000 किलोमीटर तक लॉन्ग हो सकती है ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो उस लाइन की लेंथ है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो कंडक्टर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। ओके, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा उसके चारों तरफ, उस कंडक्टर का इंडक्टेंस होगा, और दो कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस भी शो करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब कुछ ट्रांसमिशन लाइन में प्रेजेंट है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन का सपोज 100 ओम का रेजिस्टेंस है या 200 ओम का रेजिस्टेंस है। वो पर किलोमीटर लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम एक पॉइंट पे उसे सम अप नहीं कर सकते। ओके, ऐसा नहीं है कि पूरे ट्रांसमिशन लाइन का हमने सम अप कर दिया एक ही पॉइंट पे और कैलकुलेट कर लिया, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पर किलोमीटर लेंथ पे। तो हम वहां पे जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं पर किलोमीटर। जैसे रेजिस्टेंस 10 ओम या 20 ओम और 100 ओम पर किलोमीटर, राइट? ठीक है, दैट मीन्स Yes, sir. इसके पैरामीटर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल अलोंग द लेंथ, हम इसे फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब मैं ट्रांसमिशन लाइन में से कहूं कि आप उसका रेजिस्टेंस को फिजिकली सेपरेट कर दीजिए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना? मैं कहूं उसमें से रेजिस्टेंस आप मुझे अलग शो करके दिखा दीजिए कि कहाँ है, नहीं कर सकते सेपरेट, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो गया। और जो है हमारा इसके अपोजिट लंप्ड नेटवर्क होता है, और नेटवर्क in which all the elements like RLC are physically separable for calculation purpose is known as lumped network। ठीक है, ऐसे नेटवर्क जिसमें हम इनके पैरामीटर्स दैट इज एलिमेंट्स RLC को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो ये लंप्ड नेटवर्क होता है हमारा। ठीक है, तो जितने भी हम नेटवर्क्स अभी पढ़ते हैं जिसका हम एनालिसिस करेंगे, वो सब बेसिकली लंप्ड नेटवर्क ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हम यहाँ पे नहीं एनालिसिस करने जा रहे हैं, हम सब लंप्ड नेटवर्क पढ़ेंगे। लिखा भी है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आर लंप्ड इन द नेचर विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक RLC। ये नेटवर्क दिखाया भी है। ओके, सर एक बार ये लंप्ड नेटवर्क दोबारा बताना। लंप्ड नेटवर्क ऐसे नेटवर्क हैं जिनके एलिमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक पॉइंट पे हम एज्यूम कर सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए। जैसे एक नेटवर्क बनाया मैंने, मैं कह रहा हूँ इसके इस ब्रांच का रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम है, तो 10 ओम मैंने इस ब्रांच के लिए सेपरेट कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे सपोज 20 ओम है, यहाँ पे कुछ है, तो ये सेपरेटेड है, अलग अलग मैंने सेपरेट कर दिया है। अलग पॉइंट पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ का रेजिस्टेंस ये है, यहाँ का ये ऑल अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, ये लंप्ड है एक पॉइंट पे। ओके, मतलब हम इसे फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। ये नेटवर्क है जी सर। लंप, ऐसे देखो, ये नेटवर्क है, ठीक है, V1 है, R1 है, R2 है। हम इसे फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, R1 को अलग सेपरेट कर सकते हैं, R2 को अलग सेपरेट कर सकते हैं ना, ये सब कुछ सेपरेबल है ना। कैलकुलेशन के लिए हमने इन्हें एक पॉइंट पे लंप कर दिया है, इसलिए इसे हम लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने जितने भी हम नेटवर्क पढ़ेंगे अभी, आप क्या कहते हैं, लैब वगैरह में, वर्चुअल लैब आपने करी है? नो सर, अभी नहीं करी। मे बी जब फिजिकल लैब करेंगे तो उसमें हैंड्स ऑन करेंगे आप। ब्रेडबोर्ड के अंदर हम रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट करके नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। तो आपको एलिमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे R, L और C,
तो वो बेसिकली जो भी आर एल सी होगा हमारा वो लम्प्ड होगा, है ना। उसकी कुछ वैल्यू होगी, हम आपको रेजिस्टेंस देंगे, कहेंगे 100 ओम है, तो वो उसका वो रेजिस्टेंस 100 ओम का होगा। ओके, आपने रेजिस्टेंस कभी देखा लैब में कहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर देखा सबने है। देखा होगा। टू टर्मिनल डिवाइस होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का आता है, उस पर कलर कोडिंग होती है, होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड तक कलर कोडिंग आपने देखा होगा इस पे कई बार, अलग अलग कलर होते हैं। तो इस ये कलर का क्या एडवांटेज होता है, कलर कोडिंग क्यों करी जाती है? नहीं पता? उसकी वैल्यू बताने के लिए रेजिस्टेंस की। हाँ, हम इस कलर कोड के थ्रू इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर हम या तो हमारे पास मीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकें, जो कि लैब में अवेलेबल होती है, मल्टीमीटर। और अगर नहीं है तो भी हम इसकी वैल्यूज हम फिजिकली मतलब वेरीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वो कलर कोड के थ्रू। तो देख लेंगे कल, अगर आप लोग को जानना होगा कलर कोड कैसे वर्क करता है, कैसे हम कलर कोडिंग के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो कल के लेक्चर में मैं ये भी बता दूंगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क ना जिसमें से हम एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकें बेसिकली, तो उसको हम बोलेंगे लंप्ड नेटवर्क। ठीक है। अब जैसे आपने बोला था, अभी किसी ने बोला था कि मोबाइल जो है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, कोई बोला था मोबाइल या कुछ बोला था, है ना। तो मैंने बोला था ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। तो अब देखिए, जो मोबाइल के अंदर बेसिकली अगर आप डीप में जाएं तो एलसीडी होता है, एलसीडी के अंदर एक बोर्ड लगा रहता है ना, जिसे मेन बोर्ड बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। पीसीबी वर्ड सुना है आपने? यस सर। क्या होता है पीसीबी? पावर सर्किट बोर्ड। नहीं, एक्चुअली पावर नहीं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना। तो बेसिकली पीसीबी होता है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपने देखा होगा इसमें फिटेड रहते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं? आपने कभी पीसीबी देखा है? उसमें कई यस सारे सर। छोटे 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 कंपोनेंट होते हैं। तो ये बेसिकली ये कंपोनेंट होते क्या हैं इसमें? रजिस्टर लगा होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, यही सारी चीजें लगी होती हैं, है ना। जहाँ पे मुझे रेक्टिफाई करना होता है वहाँ डायोड लगा होता है, जहाँ पे मुझे फिल्टर करना होता है एल और सी लगा होता है, जहाँ पे करंट को लिमिट करना होता है या वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम सर्किट फॉर्म करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये अगेन हमारा ये पूरा जो नेटवर्क यहाँ फॉर्म हो रहा है एलिमेंट्स के थ्रू, ये अगेन हमारा लम्प्ड है, क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना बिल्कुल पीसीबी से। Yes, sir. सपोज ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है या 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसे अलग कर लिया, कैपेसिटर है, तो सब कुछ सेपरेबल है। तो ये हमारा लंप्ड है। और डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल है हमारा ट्रांसमिशन लाइन, सबसे बेस्ट सिंपल एग्जांपल अभी के लिए, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है वो लाइन के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के साथ, पर किलोमीटर लेंथ के साथ। ओके, तो क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटेड और लंप्ड। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहला लेक्चर था तो अभी ज़्यादा कुछ मैंने नहीं पढ़ाया है। ओके, जस्ट अभी इंट्रोडक्टरी ही था, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा, ठीक है ना। तो अब बेसिकली मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, और 3 बज रहा है, 3:10 तक आप मुझे सेंड कर दीजिएगा असाइनमेंट। सर असाइनमेंट पीडीएफ में शेयर करना है। हाँ, पीडीएफ आंसर अपना पीडीएफ बना के मुझे अटैच करके इसी असाइनमेंट में सेंड कीजिएगा। ओके, ओके सर। जहाँ ये असाइनमेंट का आंसर करना होगा ना आपको, वहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन में या जहाँ भी पीडीएफ बनाएंगे यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। ओके, तो मैं ये सेंड कर रहा हूँ। 3:15 कर देता हूँ टाइम, 15 मिनट इनफ होगा, क्योंकि पहला दिन है। पीडीएफ वीडीएफ बना के कर लीजिएगा।
ओके, तो असाइनमेंट आएगा तो ही मैं असाइनमेंट अटेंडेंस मार्क करूंगा। तो आपका काम है कि असाइनमेंट सबमिट कीजिए, उसके बाद आपको अटेंडेंस मिलेगा।